Good morning, students. Today we are going to start the next part of the reproduction. In earlier section or the lecture, we discuss about male reproductive systems. Right now we are going to start the female reproductive system. Like that male reproductive system, we will classify the female reproductive system into three parts. First one, your primary sex organ. Primary sex organ, that is your ovaries. How many ovaries are present? Two ovaries are present, or we can say one pair, that is found in the lower abdomen part. Okay, after it, secondary sexual organ. In these two categories are there. First one is accessory duct. In accessory duct we will include fallopian tube, we will include uterus, vagina, accessory gland, that is secondary sexual organ, accessory duct, fallopian tube, uterus and vagina. Then gland, mammary glands. External genitalia. External genitalia, another name is vulva. It will consist of five main parts, that is mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitorius. That five parts are considered as external genitalia or the vulva. So that are the basic introductory part of the female reproductive system. Before start the discussion of the female reproductive system, we should come to the diagrams. Look at, you can see this is the ovary part. Two ovaries are present. How many ovaries? Two ovaries are present. They are in the number of two, or the one pair, we can say the ovaries. It is present in the lower abdomen part of the female body. This is ovary. This is the tubular part that is called fallopian tube or the oviduct. Oviduct or fallopian tube, both are same, right? That oviduct has the different main parts. First one, you can see this is the finger-like projections part. This is the part of the infundibulum. A large part is there, wider part is there, that opens near to the ovary. So that part, finger-like projections part of the infundibulum, that is called fimbri. Fimbri is the finger-like projections that help in the catching of the ovum that is released from the ovary. ओवरी जो एग रिलीज करती है उसको कैच करने के लिए फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, राइट. आफ्टर द इनफंडिबुलम देयर इज ए लार्ज पार्ट और मिडिल पार्ट दैट इज कॉल्ड एम्पुला. एम्पुला इज ए लार्ज पार्ट, वाइडर पार्ट, and fertilization actually takes place in the ampulla part. After it, there is a long and narrow part that is called isthmus. Isthmus is connected to the uterus on the last part. Actually we can say it is extended to the uterus. ये uterus तक extend होता है. Combinedly, the isthmus part, ampulla part or infundibulum, it is known as oviduct or fallopian tube, right? After isthmus, it will open into a uterus. This is your uterus, or we can say uterine cavity. This is uterine cavity, and the upper part, this is called fundus part or uterine fundus part, right? Top part of the uterus, we can say that is fundus part. This is uterine cavity. Uterine cavity, it has the three layers. How many layers? Three layers are there. The inner glandular layer, that is endometrium, that help in the menstrual cycles. During the menstrual cycle it will break down, right? This is your endometrium. Myometrium, this is made up of smooth muscles. This is made up of smooth muscles, and especially it will help
इन द ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बेबी की डिलीवरी होती है पार्चुरेशन होता है, तो जो कंट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन मसल्स के अंदर होता है वो प्रोड्यूस कौन करता है, मायोमेट्रियम करता है, राइट। नेक्स्ट पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम इज ए आउटर थिन लेयर दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, राइट। यूटरस ओपन इनटू ए नेरो पार्ट, दैट नेरो पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स, नेरो पार्ट को अपन क्या कहते हैं, सर्विक्स के नाम से जानते हैं। योर सर्विक्स हैज द मोस्ट पावरफुल स्पिंक्टर, सबसे पावरफुल सबसे बड़ा स्पिंक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इट विल फॉर्म ए म्यूकस, इट विल फॉर्म ए म्यूकस एंड द म्यूकस दैट इज कॉल्ड प्लग, म्यूकस है वो एक प्लग का फॉर्मेशंस कर लेता है, एंड इट विल कवर द सर्विक्स पार्ट, एंड द पावर ऑफ द plug that is near about 7 किलोग्राम of the fetus it can hold, यानी इसकी पावर का एज्यूम अपन ऐसे कर सकते हैं कि जब फीटस का डेवलपमेंट होता है यूटेरस के अंदर तो 7 किलोग्राम फीटस तक ये क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, उसको बियर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये जो प्लग है वो इस फीटस को यहाँ से बाहर निकलने में प्रिवेंट करता है, रोकता है। उसके बाद cervix has the canal, that canal is called cervical canal, and cervical canals open into a large part that is called vagina, and combinedly cervical canal and vagina is called birth canal, इसको अपन birth canal के नाम से जानते हैं, and vagina open into a outer part that is called vestibule through the vaginal orifice, vaginal orifice, वेजाइनल ओरिफिस के थ्रू ये बाहर निकल जाती है, वेस्टिबुल जो पार्ट्स होता है, और फर्दर जो वेस्टिबुल्स पार्ट होता है उसके अंदर आपके ये मॉन्स बीबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन्स और क्लाइटोरियस प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई? ये बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट था जो अभी अपन ने डिस्कस किया है। अब वन बाई वन अपन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ओवेरी। किसकी बात करेंगे? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ओवेरी। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ओवेरी that is near about 2 to 4 सेंटीमीटर इन द लेंथ। लेंथ की बात करें 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर होती है। इट इज प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन ऑफ द फीमेल बॉडी, राइट। ओवेरी रिलीज द ओवम एंड सेम टाइम इट विल रिलीज द हॉर्मोन्स ऑल्सो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो वी कैन से योर ovary, that is primary sexual organ, that is mixed gland और heterocrine glands। ये mixed gland का काम करती है, ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, दैट्स वाई एंडोक्राइन का फंक्शन है। ओवम का सिक्रेशन करती है, ये इसका एक्सोक्राइन का फंक्शन है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम करते हैं, तो हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड जिसको अपन कहते हैं, राइट। आपकी जो ओवरी है, ये आपकी ओवरी की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इधर यूटेरस के साथ में और उधर पेल्विक वॉल के साथ अटैच होती है। किसके थ्रू अटैच होती है? लिगामेंट के थ्रू। क्या होते हैं ये? लिगामेंट्स। लिगामेंट आपने कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। सो योर ओवेरी इज अटैच विद द यूटेरस एंड द पेल्विक वॉल विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट के साथ अटैच होती है, राइट। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें, जनरली इट हैज 2 लेयर्स। देखिए जनरली इसमें 2 लेयर होती हैं, विसरल पेरिटोनियम। फर्स्ट विसरल पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है, और सेकंड की बात करें जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम यानी इसके अंदर ओवरी की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 2 लेयर होती हैं। सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन दैट इज विसरल पेरिटोनियम एंड इनर मेम्ब्रेन दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। अंदर जो होता है पोर्शंस उसको अपन क्या कहते हैं? स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। अंदर जो फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा।
Two membranes are there, visceral peritoneum and the germinal epithelium. राइट, जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो कवर करके रखती है एक फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट को, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्टोमा के नाम से जानते हैं. स्टोमा इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स पार्ट एंड सेकेंड वन इज इनर मेडुला पार्ट. यानी बीच में आपको जो पार्ट दिख रहा है ये आपका मेडुला पार्ट होता है, और पेरिफेरल साइड में ये जो कंप्लीट पार्ट जो आपने डिनोट किया है वो आपका क्या होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स पार्ट्स होता है. यानी दो पार्ट्स इसके अंदर होते हैं. आउटर जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट दैट इज कॉल्ड मेडुला. इनर पार्ट आपका क्या होता है, मेडुला होता है. तो ये आपका मेडुला हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो जाएगा. लेयर की बात करें तो दो लेयर्स होती हैं, विसरल पेरिटोनियम एंड जर्मिनल एपिथेलियम. राइट, अब अपन आगे चलते हैं. वेट, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ओवरी के बाद ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स. ठीक है, ये अपने ओवरी के बारे में डिस्कस किया है. ओवरी की स्ट्रक्चर्स वगैरह उसको अपन डिटेल के साथ जब oogenesis अपन पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे अपन. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट दैट इज योर ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. ओविडक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब. ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब दैट इज नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन द लेंथ के अंदर 10 to 12 सेंटीमीटर होती है. इट एक्सटेंडेड फ्रॉम ओवेरी, यानी ओवेरी से ये स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, यूटेरस तक जाती है. राइट, एक्सटेंडेड फ्रॉम ओवेरी टू द यूटेरस. राइट, इट जनरली कंसिस्ट 3 मेन पार्ट्स. इसमें जनरली कितने पार्ट्स होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट की अपन बात करें, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया आपका, इनफंडिबुलम. सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, एम्पुला. थर्ड पार्ट कौन सा हो गया, इस्टमस. ठीक है, इनफंडिबुलम पार्ट दैट इज नियरेस्ट टू द ओवेरी. ओवेरी की जो नियरेस्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम एंड विथ द एजेस, है ना, दैट हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इज कॉल्ड फिम्बरी. उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं. एंड फिम्बरी हेल्प टू कैच द रिलीजिंग ओवम फ्रॉम द ओवेरी. ओवेरी जब एग को रिलीज करती है, ओवम को रिलीज करती है, तो उसको कैच करने के लिए आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वैसे ही काम करती हैं. आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी कोई फिंगर है, आपने कोई चीज़ को ग्रैप्स करना है, पकड़ना है, तो कोई आपकी तरफ फेंकेगा तो आप उसको फिंगर की हेल्प से क्या कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे. सेम थिंग ये ऐसे ही फंक्शन करती है फिम्बरी वाला पार्ट. ठीक है, फिम्बरी वाले पार्ट्स जो इनफंडिबुलम का ही एक पार्ट है. उसके बाद में आता है आपका सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड एम्पुला. दैट इज द सेकेंड पार्ट, that is ampulla, and it will move to the next part that is called isthmus. Isthmus is a long narrow luminous part that extend from the ampulla to the uterus के साथ ये एंड होता है. फर्टिलाइजेशन जब होता है, जब उसमें क्या होता है कि ये ओम को कैच कर लेंगे, ओम यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा और एम्पुला वाले पोर्शंस में आ जाएगा. सेम टाइम में यदि स्पर्म्स आया है, मूव करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा. जाइगोट की प्रोसेस आगे अपन डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, फेलोपियन पार्ट्स, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट. डक्ट दैट विल कैरी द ओवम, ऐसी डक्ट, ऐसी ट्यूब जो ओवम को कैरी करती है, इसी वजह से अपन इसको ओविडक्ट के नाम से जानते हैं. फेलोपियन ट्यूब भी अपन इसको कहते हैं. फेलोपियन जो ट्यूब्स है उसका एंड होता है यूटेरस के साथ में. ऊपर वाला पार्ट आप देख सकते हैं, टॉप पार्ट दैट इज कॉल्ड यूटेरस फंडस, और ये आपकी यूटेराइन कैविटी होती है. यूटेराइन कैविटी एक नेरो पार्ट में खुलती है जिसको अपन सर्विक्स के नाम से जानते हैं. सर्विक्स के बारे में अपने पढ़ा है. अब यूटेरस की जो कैविटी होती है, एक्चुअल में क्या होता है, जब डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है जाइगोट के अंदर, तो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, इस यूटेरस के अंदर आ जाता है. और यूटेरस के अंदर आने के बाद यूटेराइन की जो वॉल होती है उसके अंदर वो एम्बेडेड हो जाता है, चारों तरफ से उसको कवर कर लिया जाता है और फिर उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है, प्लेसेंटा बन जाता है. ठीक है, इसके लेयर्स की अपन बात करें तो जनरली इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं. अंदर जो इनर मेम्ब्रेन्स होती है दैट इज एंडोमेट्रियम, मिडल होती है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर आउटर होती है दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम. एंडोमेट्रियम दैट इज ग्लैंडुलर इन नेचर,
ग्लैंडुलर नेचर में होती है, और आपके स्पेशली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मायोमेट्रियम्स है और क्या होती है, स्मूथ मसल्स की होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगी। स्पेशली जो वेव्स प्रोड्यूस करती है वो कब करती हैं, जब बेबी की डिलीवरी होनी होती है, बेबी की डिलीवरी के समय ये फंक्शंस करती हैं। मेरी पेरीमेट्रियम जो होती है आउटर मेम्ब्रेन्स होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके बाद अपन ने बात किया सर्विक्स के बारे में, डिस्कस किया। सर्विक्स क्या है, एक नेरो पार्ट होता है जो ओपन होता है वेजाइना के अंदर, और सर्विक्स की जो कैनाल होती है जिसको सर्विकल कैनाल कहते हैं। वेजाइना और सर्विकल कैनाल बहुत कॉमनली नोन एज बर्थ कैनाल। और उसके बाद आपकी वेजाइना होती है, वेजाइना ओपन होती है वेस्टिबुल्स के अंदर, बाहर जो पार्ट होता है उसके अंदर, जिसको वेजाइनल ओरिफिस के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। दिस इज द ऑल पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वी हैव डिस्कस सो फार। अब अपन थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। सो आफ्टर द एसेसरी डक्ट, अपन ने एसेसरी डक्ट के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें अपन ने फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में डिस्कस किया, यूटेरस के बारे में डिस्कस किया, सर्विक्स के बारे में डिस्कस किया और वेजाइना के बारे में डिस्कस किया। दैट ऑल वर कंसिडर्ड इन द एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट के बाद में अपन बात करते हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स की अपन बात करें तो फीमेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि मेल के अंदर भी क्या होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती है, बट मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द मेल दैट इज पुअरली डेवलप्ड, क्या होती है, पुअरली डेवलप होती हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर क्या होती है, वो एडवांस होती है, मोर डेवलप होती हैं, और दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस द मिल्क ड्यूरिंग आफ्टर द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद वो मिल्क का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज दे हैव टू फीड द बेबी। सॉरी, बेबी को क्या करना है, उसको फीड करवाना होता है, इस वजह से उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। राइट, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं नंबर्स में 2 होती हैं, ठीक है, और जिसको अपन ब्रेस्ट के नाम से जानते हैं। ब्रेस्ट होती है जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अपनी चेस्ट कैविटी होती है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आपकी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है, एक्चुअली उसमें क्या होता है, कुछ वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फैट, इसके चारों तरफ फैट का डिपोजिशन होता है, एंड ग्लैंडुलर नेचर्स के अंदर होती है। किस नेचर में होती है, ग्लैंडुलर नेचर्स के अंदर होती है। अपने पढ़ा था सेल्यूलरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड्स है, ये किस ग्लैंड्स के अंदर आती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आती है। राइट, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जो सिक्रेशन जो होता है उसको किस में डालती है, डक्ट के अंदर डालती है। दैट्स वाई दे आर कोल्ड डक्टेड ग्लैंड, इसी वजह से उसको अपन डक्टेड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जब अपन उसकी स्ट्रक्चर्स देखें तो आप ये देख सकते हैं, ये रिब्स वाला पोर्शन है, यानी ये वाला जो है ना अपना, ये रिब्स वाला पोर्शन होता है, ठीक है। और इसमें बीच में अपने मसल्स दिखाई है, रिब्स के बीच में, ये रिब्स के बीच में जो मसल्स है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद अपन अंदर की बात करें तो अंदर क्या होता है, इसको एक सीक्वेंस में आपको याद रखना है। बुक से आज जब आप पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कौन सा पार्ट किस पार्ट के बाद में आ रहा है, क्या बना रहा है। इसको आप सीक्वेंस के साथ ध्यान में रखें और माइंड के अंदर एक मैप बनाने की कोशिश करें, एक पिक्चर बनाने की कोशिश करें। पिक्चर सामने लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा अपन डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जो ग्लैंडुलर जो टिश्यू होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 15 से लेकर 20 मेमोरी लॉब्स होते हैं। आप इसको यूं समझ लीजिए कि ऐसे 15 से लेकर, एक लोब मैंने यहाँ पे बनाया है, 15 से लेकर 20 तक मेमोरी लोब होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। कितने होते हैं, नंबर ऑफ 15 से लेकर 20 मेमोरी लोब्स, ये मेमोरी लोब्स होते हैं। बात समझ में आ गई। इन द मेमोरी लोब्स ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर देयर, और वी कैन से क्लस्टर ऑफ सेल्स आर देयर। क्लस्टर ऑफ क्या होंगी, सेल्स होंगी। वो क्लस्टर ऑफ जो सेल्स होंगी जिसको अपन क्या कहेंगे, एल्वोलाई के नाम से जानेंगे। दैट एल्वोलाई सिक्रेट द मिल्क, ये जो एल्वोलाई है यही मिल्क का सिक्रेट करेगी और इसको स्टोरेज करेगी। बात समझ में आएगी। यानी इन्होंने क्या किया, मेमोरी ग्लैंड्स की ये जो एल्वोलाई वाला जो पार्ट था, इसने क्या किया, मिल्क का सिक्रेशन कर लिया और टेम्पररी उसको क्या कर लिया, वहाँ से स्टोर कर लिया। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट पार्ट आपका आता है मेमोरी डक्ट वाला पार्ट, यानी ये जो एल्वोलाई वाला पोर्शंस है, ठीक है, एल्वोलाई वाला जो पोर्शंस है वो किस में खुलागा, यहाँ एक डक्ट्स आएगी, ये ट्यूब्स आएगी। डक्ट का मीनिंग ये समझ लीजिए आप, ये ट्यूब्स आएगी। तो मिल्क जो है वो कहाँ आ गया, इन डक्ट के अंदर आ गया। तो थर्ड पार्ट कौन सा हो गया, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट्स के अंदर आ गए। और लोब के अंदर जितने भी जो मेमोरी डक्ट आ रहे हैं वो एक लार्ज ओपन पार्ट, एक बड़ा पार्ट होता है,
एम्पुला आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट एम्पुला आएगा। अभी अपने वहाँ पढ़ा था एम्पुला, वहाँ भी बड़ा पार्ट था। तो एक लार्ज पार्ट के अंदर ओपन होता है, और ये जो लार्ज पार्ट है, मान लीजिए ये आपका लार्ज पार्ट है, इस लार्ज पार्ट को अपन ने क्या नाम दिया एम्पुला का नाम दे दिया। तो मिल्क डक्ट से कहाँ आ गया जी, एम्पुला के अंदर आ गया। जितनी भी सारी डक्शन है एक लोब की, वो एक एम्पुला के अंदर खुल जाएगी, एक एम्पुला में ओपन होगी, ठीक है। दूसरा लोब होगा उसका दूसरे एम्पुला में इकट्ठा हो गया, ठीक है, एम्पुला हो गया। एम्पुला से क्या निकलेगी, लैक्टिफेरस डक्ट निकलेगी। एम्पुला जो है यहाँ से लैक्टिफेरस डक्ट निकलेगी जो मिल्क को लेकर के जाएगी। हर एक एम्पुला से निकलेगी तो लैक्टिफेरस डक्ट होगी, नंबर्स में होंगी। यहाँ से ये लैक्टिफेरस डक्ट आ रही हैं, लैक्टिफेरस डक्ट आकर के लास्ट पार्ट तक आ जाती है जिसको अपन निपल के नाम से जानते हैं। और निपल के अंदर सब लोब से अलग अलग डिफरेंट क्या आएगी, डक्ट आएगी, लैक्टिफेरस डक्ट आएगी और उस निपल के अंदर आ जाएगी। जैसा ही जो बेबी होगा वो सक करेगा निपल को सक करने से लैक्टिफेरस डक्ट में जो मिल्क है ना वो सारा बेबी के माउथ में चला जाएगा। बात समझ में आ गई क्या भाई? एकदम सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से अपने समझने की कोशिश की है। इनको नाम को आपको याद जरूर रखना है, ठीक है। 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, उसके अंदर आपकी एल्वलाई होती हैं। एल्वलाई मिल्क का सेक्रेशन करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, वहाँ से फिर टेम्पररी स्टोरेज के बाद यहाँ से मेमोरी डक्ट के अंदर निकलती है। डक्ट मिलकर के एक लार्ज पार्ट एम्पुला में खुलती है, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट में जाएंगी, लैक्टिफेरस डक्ट से कहाँ जाएगी, निपल में आ जाएगी। इसको आप सिक्वेंस में लिखना चाहें तो सबसे पहले आपका मेमोरी लोब होगा, लोब के बाद में आपकी एल्वलाई आप ले सकते हैं, और एल्वलाई के बाद में आप डक्ट ले सकते हैं। कौन सी, मेमोरी डक्ट की बात करेंगे। मेमोरी डक्ट किस में खुलेगी, एम्पुला के अंदर खुलेगी, और एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट आएगी। वहाँ पे जो डक्ट आ रही थी वो मेमोरी डक्ट थी, ठीक है ना। फिर लैक्टिफेरस डक्ट आ जाएगी और लास्ट फाइनली आपका क्या आ जाएगा बेटा, निपल आ जाएगी। ये सारी चीज़ आपको सीक्वेंस में ध्यान रखनी है, आपकी मेमोरी ग्लैंड्स कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स ओवेरीज के बारे में डिस्कस किया। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में अपने एसेसरी डक्ट्स पढ़ी और ग्लैंड्स पढ़ ली अपन ने। अब क्या आएगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, वल्वा के नाम से जानते हैं। और मोस्टली कन्फ्यूजन्स बच्चों को यही रहता है, वल्वा के बारे में सुन लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन वापस भूल जाते हैं कि ये पार्ट कौन सा होता है। मॉन्स प्यूबिस कैसा है, लेबिया मेजोरा कौन सा है, लेबिया माइनोरा कौन सा है, और आपके पास क्लाइटोरियस क्या होता है और हाइमन क्या होता है। इसको एक सिंपल डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करेंगे, सारे डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए क्या है जेनिटेलिया, वल्वा। डायग्राम देखें, डायग्राम में सारी चीज अपने क्लियर लिखी है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड हाइमन एंड क्लाइटोरियस। देखिए फर्स्ट है मॉन्स प्यूबिस। आप ये जो डायग्राम्स देख रहे हैं उसमें ये जो पार्ट है वो वेस्टिबुल वाला पार्ट है। वेस्टिबुल वाला पार्ट यानी जो वेजाइना है जहां से ओपन हो रही है ना, उसके ऊपर वाला पार्ट है। ये जो सेफ स्ट्रक्चर्स दिख रही है आपको, ये सेफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये आपका वेस्टिबुल वाला पार्ट है, और इसके ऊपर ही आपका प्यूबिक रीजन है जिसपे हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। ये आपके हेयर है, प्यूबिक हेयर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका एनएस वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अपन ने डायग्राम जो लिया है ना वो इस पोजीशन से लिया है जिसमें आपका ये एनएस वाला पोर्शन दिख रहा है और इसके ऊपर ये आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया अपन ने शो किया है। अब ध्यान से सुनना, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की रिक्वायरमेंट आपको क्या है। फर्स्ट पर्सन की अपन बात करें, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, ये तो आपका क्या हो गया, वेस्टिबुल वाला पोर्शन हो गया। इसके ऊपर वाला ये जो पोर्शन दिख रहा है ना बेटा, ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसमें हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, प्यूबिक हेयर होते हैं वहां पे, और वो वहां पे जो टिश्यू होता है वो फैटी टिश्यू होता है, फैटी क्यूसेंस लाइक टिश्यू। क्यूसेंस समझते हैं, जो आपका पिलो होता है आप दबाते हैं, स्पॉन्जी लाइक होता है, स्पॉन्ज जैसा होता है। तो स्पॉन्ज जैसा टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको अपन मॉन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। और इस प्यूबिस के अंदर प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होता है, यानी हेयर का डेवलपमेंट वाला ऊपर वाला जो पोर्शंस होता है, फ्लैट पोर्शंस होता है जिसपे हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, और क्यूसन्स फैटी टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्यूसन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसको अपन मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि सबसे बाहर वाला जो फ्लैट पोर्शन है जो स्पॉन्जी होता है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, मॉन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा एक्चुअल में है क्या, ये क्या है कि जो
आपका पॉन्स जो प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया है, वो आगे एक्सटेंड डाउन हो जाता है, नीचे चल करके वेस्टिबुल के अंदर एक्सटेंड हो जाता है और फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। क्या बनाता है? फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। आपने देखा होगा जो टिश्यू है ना, वो क्या हो जाएगा? फोल्ड डाउन हो जाएगा वहां से। तो ये फोल्ड डाउन वाली स्ट्रक्चर जो अपर सरफेस है, यानी मॉन्स प्यूबिस जब फोल्ड डाउन होता है तब क्या बनाता है? लेबिया मेजोरा बनाता है, मेजर पार्ट बना लेता है। और उसके अंदर एक इनर फोल्डिंग और होती है जिसको अपन लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं। बात समझने की कोशिश करना। लेबिया मेजोरा जो है वो क्या करेगा? यहां से मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट होगा और अंदर जाकर के ऐसे एक्सटर्नल फोल्डिंग्स बना लेगा। बात समझ में आ गई? अब ये एक्सटर्नल फोल्डिंग्स बनाएगा तो यहां पे आप देख सकते हैं ये वेजाइनल ओपनिंग है और ये आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग है। यानी यूरिथ्रल ओपनिंग है, उधर से यूरिन रिलीज होगा, और वेजाइनल जो ओपनिंग है, वेजाइनल ओरिफिस जो है, उधर से क्या होगा? स्पर्म्स एंटर करेगा। यानी स्पर्म की एंट्री के लिए और यूरिन पास आउट करने के लिए फर्दर दो पोर्स होते हैं, दो होल्स होते हैं। जबकि मेल के अंदर क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिंगल पोर होता है जिसके थ्रू ही यूरिन पास आउट होता है, जिसके थ्रू ही स्पर्म आता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? वेजाइनल ओपनिंग सेपरेट होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग क्या होती है? सेपरेट होती है। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो आपका लेबिया मेजोरा है, ऐसे आकर के फोल्ड होकर के वेजाइनल ओपनिंग को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। यानी वेजाइनल जो ओपनिंग है वो लेबिया मेजोरा से क्या रहेगी? कवर रहेगी। ठीक है। उसके अंदर आपके क्या है? यूरिथ्रल ओपनिंग भी है और वेजाइनल ओरिफिस है। तो लेबिया माइनोरा क्या होता है? मेजोरा का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है, वहीं से निकलता है और अनदर फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। दूसरी एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती है जो क्या करेगी? यूरिथ्रल ओपनिंग को और वेजाइनल ओपनिंग दोनों को कवर कर लेगी। आप ये देखें, ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है ना, ये इन दोनों पार्ट्स को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। बात समझ में आ गई? नंबर बात करते हैं 3, माइनोरा हो गया। उसके बाद क्लाइटोरियस की बात करते हैं। आपका लेबिया जो माइनोरा है उसका एंटीरियर पार्ट के ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, आप कह सकते हैं एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या क्या कह सकते हैं उसको, एक स्मॉल स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्लाइटोरियस कहते हैं। स्पेशली जब इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कोपुलेशंस होता है, उस समय क्लाइटोरियस को रब करने पे एक प्लेजरेबल सेंसेशन प्रोड्यूस होता है और इसका कोई विशेष फंक्शंस नहीं होता है, सिर्फ ये इरेक्शंस में प्लेजर फील करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपके यहाँ पर होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जो लेबिया माइनोरा के एंटीरियर पोर्शंस के ऊपर होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्लाइटोरियस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद अपन आते हैं लास्ट पार्ट हाइमन के ऊपर। हाइमन जो होता है वो वेजाइनल जो ओपनिंग होती है उसके अंदर एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। और वो मेम्ब्रेनस पार्ट जो है उसको अपन क्या करें बेटा? हाइमन का नाम दे रहे हैं। अब जनरली क्या होता है फर्स्ट इंटरकोर्स में, हाइमन, मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? या यूँ समझ लीजिए कि ये आपकी वेजाइनल ओरिफिस है और इसके ऊपर एकदम स्मॉल 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 एकदम मेम्ब्रेन्स होती है, एकदम फाइन मेम्ब्रेन्स होती है, बहुत पतली मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन आप उसको कह सकते हैं। जैसे ही फर्स्ट इंटरकोर्स होगा तो क्या होगा? इस वेजाइना के अंदर कौन जाएगा? पेनिस जाएगा। पेनिस का इसके अंदर क्या करेगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने की वजह से ये आपकी जो हाइमन है, जो थिन मेम्ब्रेन्स है, वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। जनरली रप्चर्स हो जाती है फर्स्ट इंटरकोर्स के अंदर। ध्यान से सुन लेना, फर्स्ट इंटरकोर्स में जनरली हाइमन्स रप्चर हो जाती है। ठीक है। लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें फर्स्ट इंटरकोर्स से पहले ही हाइमन रप्चर हो जाती है। बोले ऐसे कैसे? पेनिस जब एंटर नहीं हुआ है फिर भी हाइमन कैसे रप्चर होगी? जनरली जो एथलीट्स होते हैं, जो हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, है ना, हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो हॉर्स राइडिंग करते हैं तो वो बैठते हैं तो फोर्स क्रिएट होता है। साइकिलिंग करते हैं, जिम्नास्ट वगैरह होते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह वो करते हैं, तो उस समय क्या होता है? आपकी जो हाइमन्स होती है ना वो रप्चर हो जाती है फर्स्ट इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ही। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वहाँ पे की हाइमन है या नहीं है ये आपको वर्जिनिटी के बारे में नहीं बताती है। वर्जिनिटी का मीनिंग ये है कि किसी गर्ल्स के अंदर यदि हाइमन पहले से ही रप्चर है, इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि साइकिलिंग के दौरान या फिर हॉर्स राइडिंग के दौरान वो हाइमन्स पहले से रप्चर हो चुकी है। बात समझ में आ गई? ठीक है। और कई बार रप्चर होती भी नहीं है। ठीक है, दोनों सिचुएशंस होती है, लेकिन इसका कंक्लूजन ये है, हाइमन, प्रेजेंस ऑफ हाइमन डज नॉट इंडिकेट द सेक्सुअल इंटरकोर्स। प्रेजेंस और अब्सेंस है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में नहीं बताती है। यदि मान लीजिए वहां पे है
या फिर नहीं है? नहीं है इसका मतलब अपन ये सोचेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा जिससे वो रप्चर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी वो रप्चर हो सकती है। तो बात समझ में आई कि बेटा एक्शनल जेनाइटेलिया जो वल्वा के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे उसमें 5 पॉइंट को अपन ने डिस्कशन किया है। मॉन्स पिबी जो फ्लैट क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर फैटी टिश्यू होता है, प्यूबिक हेयर का वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। उसके बाद लेबिया माइनोरा और मेजोरा जिसमें इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। लेबिया मेजोरा जो होती है वो कहाँ से? मॉन्स पिबियो से स्टार्ट होती है, अंदर जाकर के फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना लेती है। यूरिथ्रल ओपनिंग ऊपर वाला और वेजाइनल ओरिफिस दोनों को कवर करके रखता है। उसके अंदर जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती है सॉरी, जो लेबिया मेजोरा होता है वो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखता है और लेबिया माइनोरा दोनों को कवर करके रखता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्लाइटोरिस पढ़ा आपने, लेबिया माइनोरा के ऊपर टॉप के ऊपर फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन थे वो प्लेजरेबल सेंसेशन के अंदर जब उसमें रविंग करते हैं तो ये प्लेजरेबल सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। फिर आपकी हाइमन्स होती है, मेम्ब्रेन्स होती है वेजाइनल ओरिफिस के ऊपर, फर्स्ट इंटरकोर्स में रप्चर हो जाती है। तो ये था अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें अपन ने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ओवेरी, नंबर 2 1 पेयर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता बेटा। सेकेंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जिसमें एसेसरी डक्ट्स अपन ने पढ़ी, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को पढ़ा यानी ओविडक्ट को। उसके बाद यूटेरस को, सर्वेक्शन, वेजाइना पढ़ा। उसके बाद अपने ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ी, सीक्वेंस के अंदर अपन ये सब स्टडी किया है। मेमोरी ग्लैंड्स के बाद में आपकी एक्सटर्नल जेनेटेलिया आता है जिसमें आपके 5 रीजन वल्वा के अंदर शामिल किए गए हैं, जिसमें आपने पढ़ा कहाँ से स्टार्ट किया, मॉन्स पिबियो से स्टार्ट किया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और आपका क्लाइटोरियस और आपकी हाइमन्स। क्लियर? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम का प्रोडक्शन, oogenesis, दोनों को पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से समझते रहें। धन्यवाद।